پہلے میں انستھیزیا میں رہا، آپریشن تھیٹر میں رہا، پھر میں وہاں آپریشن میں تقریباً 13 سال سروس وہاں پہ BMC ہاسپٹل میں رہی. پھر میں اسسٹنٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ BMC ہاسپٹل میں رہا. اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. ان کے بعد میں DHO اپنا نصیر آباد میں رہا، اور اب میری لاسٹ پوسٹنگ یہاں استامون میں ہوئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنی میری ایفرٹ ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میں جو کر سکتا ہوں میرے اپنے جو حوالے سے جتنا بھی ہوگا ممکن ہوگا، میں ہیلتھ استامون کو، کیونکہ یہ میرا پراپر ضلع بھی ہے، تو میں اس کو بہتر بنا سکوں. اپنے اسٹاف کو یہ پیغام دوں گا کہ مریض بڑی خواہشات لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کی خواہشات ہوتی ہے کہ اس کو وہیں پہ ٹریٹ کیا جائے. تو وہ ٹریٹمنٹ، وہ جو ایک فیسلٹیز ہے، وہ اس کو وہیں پہ ان کی دہلیز پہ ملنی چاہیے میری، اور اتنی فیسلٹیز ہوں کہ مریض ہم سے خوش ہو کے جائے. ہاں، مطلب جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، جو پازیٹیو لوگ ہیں، وہ ضرور ہماری مشکلات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مشکلات ہیں، جہاں پہ ہم کر سکیں گے. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہماری مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں بالکل ہم سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے تھرو ہمیں وہ جو خامیاں ہیں وہ پتہ چلیں گی، کہ جو کمی بیشی ہے اس کا پتہ چلے گا. ڈسٹرکٹ کے لیے میرا 1 کروڑ کے قریب ڈسٹرکٹ کا ہے، 80 لاکھ جو ہے نا THQ ہاسپٹل کا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاپولیشن کے حساب سے یہ میڈیسن بہت کم ہے. اسٹاف ماشاءاللہ میں کیونکہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ پیج ہے. اس ٹائم ہم نے جب علیحدہ کیا ہم نے ڈسٹرکٹ کو، 394 پوسٹیں ہماری سینکشن پوسٹیں تھیں، جن میں سے ہمارے پاس 331 فیلڈ ہیں، اور 63 کے قریب ہمارے پاس پوسٹیں ابھی خالی پڑی ہوئے ہیں. کیونکہ یہ ضلع جب علیحدہ ہو جائے گا، آفیشیل فنانس میں چلا جائے گا، اور علیحدہ ہونے کے بعد ہم پھر وہ جو بقایا جو پوسٹیں ہیں وہ اناؤنس کر لیں گے. میں دیکھتے ہم جب بھی کہیں اگر کوئی بھی اس طرح کا ایشو آ جاتا ہے یا عملہ کوئی غیر حاضر ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایک فورم بنا ہوا ہے، DC کا ایک فورم ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹی ہم اس کو کہتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس مانیٹر ہوتے ہیں، DSM مانیٹر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے، DC صاحب ان کے چیئرمین ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مانیٹرنگ، اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہمارے اوپر بہت سے مانیٹر رکھے ہوئے ہیں، مطلب NGOز رکھے ہوئے ہیں. اکاسس ایک NGO ہے جو کہ ہر فیسلٹیز پہ جا کے وہ ہر چیز کو مانیٹر کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں پہ وہ کوئی بیڈ کم ہے، اگر کوئی ایک دوائی کم ہے، وہ بھی ہمیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، وائس آف DM کے ساتھ دلمراد عمرانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالمنان لاکھی صاحب جو DHO استامون ہیں. آج ان سے ہم نے وقت لی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. آئیے سر سے تھوڑا بات چیت کرتے ہیں. سر السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہاں پہ تعینات ہوئے ہیں، آپ نے کیا فیسلٹیز دی ہیں؟ تھینک یو، آپ کا بڑی مہربانی، اور خاص طور پہ GNN کا، جو آپ آج ہمارے پہلے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندے ہیں جو کہ آج ہمارے پاس یہاں آئے ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو میں یہاں نصیر آباد کی عوام کو ڈسٹرکٹ علیحدہ بننے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں جیسے ہی استامون میں آیا، ایز اے نیا ڈسٹرکٹ تھا، اس ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسی پوسٹیں وغیرہ بائیفرکیشن ابھی تک نہیں ہوئی تھیں. جیسے ہی میری تعیناتی ہوئی ہے، مجھ سے پہلے بھی DHO صاحبان تھے، انہوں کی تعیناتی انہوں نے بھی کام کیا تھا، لیکن میرے آنے کے بعد ہم نے پوسٹیں، پہلا کام ہمارا جو سب سے بڑا کام تھا وہ ہم نے پوسٹیں علیحدہ کی. پوسٹیں علیحدہ کرنے سے یہ فائدہ ہونا تھا کہ یہ آفس فنکشنل ہونا تھا. مطلب جب تک پوسٹیں ہماری نہیں ہوں گی، ہمارا اسٹاف پراپر اپنے آفس میں نہیں ہوگا، تب تک یہ ضلع اسی طرح کام نہیں کر سکے گا. کیونکہ اسٹاف کا ہونا اور اسی ضلع میں ہونا، کیونکہ اس سے مشکلات ہوتی ہیں کہ جعفر آباد ڈسٹرکٹ تھا تو لوگ وہاں جاتے ہیں، گنداخا کے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس آفس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے یہاں ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیا، اور یہاں ہم DHO آفس نے کام کرنا شروع کیا. چند چیزیں جو کہنا چاہوں گا اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، کیونکہ سب سے بڑی مشکلات، کیونکہ سیلاب کے آنے کے بعد ہمارا انفراسٹرکچر جو نصیر آباد کا ڈویژن کا پورا تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. اس کی بہت سی مطلب نقصانات ہوئے، ہیلتھ فیسلٹیز گئے، فرنیچر ڈیمیج ہو گیا، اسٹاف کا بیٹھنا وہاں ناممکن ہو گیا. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ یہ ہیلتھ فیسلٹیز جو کہ ہمارے خاص کر کے جو استامون، کیونکہ میں استامون کا ذکر اس لیے کروں گا کہ میرا تعلق استامون سے ہے، تو استامون کے ڈسٹرکٹ کو ہم نے اسٹارٹ کیا، اور 8 ہیلتھ فیسلٹیز جو ہم نے بالکل رینویٹ کر دی ہیں اور بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہیں. وہ میں تصویریں آپ کو شیئر کر دوں گا. اس میں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت بہترین بنا ہوا ہے. 8 فیسلٹیز بن چکی ہیں 33 میں سے.
13 BHU हैं वो ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। अब बकाया जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी वो आने वाले दिनों में वो पूरे हो जाएंगे। सर यहाँ पे जिस तरह आपने बात किया BHUs में, यहाँ पे इसके करेंगे फंड कम है, ये अपना जो मेडिसिन का है इसके हवाले से बताएं। जो बजट हमारा रिलीज़ किया गया डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरा 1 करोड़ के करीब डिस्ट्रिक्ट का है, 80 लाख जो है ना THQ हॉस्पिटल का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये मेडिसिन बहुत कम है। अब इंशाल्लाह नई गवर्नमेंट आई है, इस नई गवर्नमेंट आने के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम, क्योंकि पहले भी जब थे उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, अलहदा हुआ और वो इस पोजीशन में आके हम ठहरे हुए हैं। अब इसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ये मेडिसिन बढ़ जाए। तकरीबन ये 2 के करीब अगर होगी तो ये मेडिसिन फिर जाके हमारे उस सामान को पूरी होगी। तो इंशाल्लाह नया माली साल में जो बजट आएगा उसमें हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सर यहाँ पे ये भी बताना, कुत्ते काटने वाला है या सांप का, इसके हवाले से बताएं, यहाँ पे अवेलेबल है? जी, सांप के और कुत्ते के इंजेक्शन बिल्कुल अवेलेबल थे और आपको मैं रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ये ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि 15 तारीख, पिछले महीने की 15 तारीख को ये लास्ट एंड हो चुका था। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो कि कुत्ते का इंजेक्शन बनाता है। हम ये जब ऑर्डर प्लेस करते हैं गवर्नमेंट बलूचिस्तान को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो वो प्रायोरिटी पे बलूचिस्तान, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी प्रायोरिटी होती है कि कहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं। अब मसला, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कुत्ते काटने का, बावला कुत्ता हो जिसको हम पागल कुत्ता कहें, अगर वो काटे तो उसके लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि कुत्ता कहीं भी काट ले, चाहे कोई भी घर का कुत्ता हो वो भी काट ले, तो उसको इंजेक्शन लगाना लाजमी हो जाता है। तो मैं ये डिफ्रेंशिएट, ये तफरीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हर आदमी कहता है कि सर कुत्ता ने मुझे काटा तो इंजेक्शन मुझे लगना चाहिए, और उसके लिए 5 इंजेक्शन एक बार इसके लिए होने चाहिए। हम ओवरऑल अगर साल का हिसाब लगाएं तो ये 700 या 800 हमें इंजेक्शन मिलते हैं 1 साल के लिए। ये कोटा बढ़ाने के, क्यों NIH बहुत कम मिकदार में बनाता है, इस्लामाबाद से बनते हैं, फिर वो सप्लाई होते हैं MSD में, फिर हमें ज़िलों को दिए जाते हैं। वो बहुत कम तादाद में हमें मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि उनको पूरा करने के लिए सांप के इंजेक्शन अल्लाह की मेहरबानी से मौजूद हैं और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए हैं। कुत्ते के इंजेक्शन इंशाल्लाह कुछ दिनों में जैसे ही सप्लाई शुरू हो जाएगी वो भी हमें मिल जाएंगे। सर यहाँ पे जिस तरह ऑफ की कमी, MBBS हमारे पास कम है, तो इसकी भर्तियाँ कब होंगी, क्या करेंगे इसके हवाले से? नहीं, स्टाफ माशाल्लाह मैं क्योंकि मेरे तो सामने पड़ा हुआ है ये पेज है, इस टाइम हमने जब अलहदा किया हमने डिस्ट्रिक्ट को, 394 पोस्टें हमारी सेंक्शन पोस्टें थी, जिनमें से हमारे पास 331 फील्ड हैं और 63 के करीब हमारे पास पोस्टें अभी खाली पड़ी हुई हैं। क्योंकि ये ज़िला जब अलहदा हो जाएगा, ऑफिशियल फाइनेंस में चला जाएगा, और अलहदा होने के बाद हम फिर वो जो बकाया जो पोस्टें हैं वो अनाउंस कर लेंगे। इस टाइम भी हमारे पास स्टाफ मौजूद है। सर यहाँ पे ये भी बताना है कि जिस तरह आपने THQ के बारे में बताया कि 80 लाख रुपया है, ये ना होने के बराबर है। यहाँ पे एमरजेंसी है, दूसरा है, और यहाँ पे आप भी विजिट करते रहते हैं, वहाँ पे अमले मुकम्मल हैं कैसे? जी हाँ, मैं बिल्कुल देखते, हम जब भी गए हैं अगर कोई भी इस तरह का इशू आ जाता है या अमला कोई गैर हाज़िर होता है तो उसके खिलाफ एक फोरम बना हुआ है, DC का एक फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी हम उसको कहते हैं। जो भी हमारे पास मॉनिटर होता है, DSM मॉनिटर होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है, DC साहब उनके चेयरमैन होते हैं जब भी कोई मॉनिटरिंग। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर बहुत से मॉनिटर रखे हुए हैं, मतलब NGOs रखे हुए हैं। अकासी से एक NGO है जो कि हर फैसिलिटीज़ पे जाके वो हर चीज़ को मॉनिटर करती है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे वो कोई बेड कम है, अगर कोई एक दवाई कम है, वो भी हमें हाईलाइट किया जाता है और वो सेक्रेटरी साहब के शिफारिश से हमारी चली जाती है और सेक्रेटरी साहब इसको हर मंथ पे वो चेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपका जो ऑफिस है बिल्कुल यहाँ पे लेबर अस्पताल में, लेबर अस्पताल के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि लेबर अस्पताल फंक्शनल क्या है, यहाँ पे इमरजेंसी कैसे शुरू होगा, कैसी है नाइट के टाइम? जी, अभी हमने तकरीबन इवनिंग स्टार्ट कर दी है, 24 करने की, इसको 24/7 करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेबर हॉस्पिटल का स्टाफ अटैचमेंट पे THQ हॉस्पिटल में है। THQ हॉस्पिटल को चलाने के लिए वहाँ स्टाफ की बहुत कम तादाद है, मतलब अगर 10-15 का स्टाफ है, क्योंकि यहाँ लेबर हॉस्पिटल थोड़ा दूर पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमने स्टाफ वहाँ THQ में शिफ्ट किया हुआ है। ऐसे बताएं कि यहाँ पे कितने एम्बुलेंस काम कर रही हैं, उस्तामुन में कितने, गद्दाखिल में क्या है, और आपने क्या दूसरी आपने डिमांड की है गवर्नमेंट बलूचिस्तान को? गुजारिश करूँगा कि नया डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से 7 एम्बुलेंसें हमारे पास टोटल इस टाइम हमारे उस्ता मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में हैं।
3 अपना THQ में हैं, 2 लेबर हॉस्पिटल में थी, वो अभी शिफ्ट हो गई गंदाखा के लिए, गंदाखा वाली एम्बुलेंस है। एक है अपना पंदरानी में, BHU पंदरानी में उसमें है, और एक जो है अपना चौकी जमाली में। तो चौकी जमाली वाली एम्बुलेंस, 7 एम्बुलेंसें इस टाइम हमारी काम कर रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर फैसिलिटीज़ पे एम्बुलेंस लाने की, जितना हो सके कि हम कोशिश करें कि फैसिलिटीज़ हमारी हर फैसिलिटीज़ में एक एम्बुलेंस मौजूद हो, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंसेज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हों, और गवर्नमेंट को भी हम लिखने की कोशिश करें, क्योंकि नया ज़िला है, क्योंकि अभी तक हम जाफराबाद के साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये इसी माली साल के बजट में जो है ना वो अलहदा हो जाएगा, और उसके इस पर तमाम एम्बुलेंसें भी अलहदा हो जाएगी। हमारे इस लेबर अस्पताल में यहाँ पे जो अपना इंडस हॉस्पिटल का एक NGOs का बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे अवाम भी जानता है इसके हवाले से हमारे थोड़ा नाजरीन को थोड़ा बताएं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सी डिलीवरी हुई हैं, डिलीवरी अद्वियात दी जाती है यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत बड़ी फैसिलिटी। देखिए, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी NGO काम करती है, वो उनकी एक पार्टनरशिप होती है, क्योंकि 80% जो है ना गवर्नमेंट खुद पे करती है, और 20% जो है ना वो उनको, मतलब वो NGO वो ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो इस तरह माशाल्लाह इंडस हॉस्पिटल ने इस सैलाब के दौरान आया था, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, उन्होंने कैंप्स भी लगाए, हमने जॉइंट कैंप्स किए हैं उस्ता मोहम्मद में। और इंडस हॉस्पिटल, ये बॉक्स हॉस्पिटल है, एक हमारा मेन रोड पे है इंडस हॉस्पिटल। ये जो अभी सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ के ताउन से ये इंडस और यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको चला रही हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी दिसंबर में क्लोज हो चुका है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करें, क्योंकि उनका तावन जब हमारे साथ होगा तो हम पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिलीफ दे सकेंगे इसमें। डॉक्टर साहब अब्दुल मनान साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत जगह रहे हैं माशाल्लाह DHO में, यहाँ पे अभी अल्लाह ने आपको वक्त दिया, आप अभी क्या करेंगे आइंदा? अभी माली साल भी आ रहा है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करना चाह रहे हैं कि मैंने कहा कि मैं जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी मेन हॉस्पिटल है, सबसे हमारी अलहदा होगी कि DHQ इसको डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि DHQ अभी तक हमारे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलहदा बना है। तो इसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे मोतबरीन हैं और जो अभी MPA साहबान, अभी नए इलेक्शन आ गए हैं, वो जैसे ही आगे जाएंगे तो उनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि एक DHQ डिक्लेयर किया जाए, उसमें हम वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे सकें जो लोगों को हम अपने इसी हॉस्पिटल में वो सहूलत फराहम कर सकें। ऑपरेशन थिएटर को हम, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ऑपरेशन थिएटर एक बन जाए, जहाँ पे प्रॉपर हम एक ट्रामा सेंटर इस्टेब्लिश करें। ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि ट्रामा सेंटर बना तो ज़रूर है, बिल्कुल बना है, अब उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत है। वो स्टाफ एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जैसे ही स्टाफ होगा तो ट्रामा सेंटर अपना काम करना शुरू होगा। और सबसे बड़ी हमारी ख्वाहिश ये है कि हम यहाँ पे एक DHQ को डिक्लेयर करें। DHQ जब तक डिक्लेयर नहीं होगा और DHQ की बिल्डिंग नहीं बनेगी तो हम वो फैसिलिटीज़ जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो नहीं फराहम कर सके। लेकिन फिर भी हमारा ये लेबर हॉस्पिटल, THQ हॉस्पिटल है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो चल रही हैं, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सर, आखिर में मरीज़ हैं, हमारे अवाम है उस्ता मोहम्मद गंदाखा के, उनको क्या पैगाम दें? आप एक DHO डॉक्टर भी हैं। जी हम देखें, सबसे पहले मैं एक पैगाम तमाम अव्वल तो अपने स्टाफ को दूंगा, अपने स्टाफ को ये पैगाम दूंगा कि मरीज़ बड़ी ख्वाहिशात लेके आता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात होती है कि उसको वहीं पे ट्रीट किया जाए। तो वो ट्रीटमेंट, वो जो एक फैसिलिटीज़ है वो उसको वहीं पे उनकी दहलीज पे मिलनी चाहिए। मेरी ये है कि मरीज़ को वहीं उसकी दहलीज पे मिलनी चाहिए, और इतनी फैसिलिटीज़ हों कि मरीज़ हमसे खुश होके जाए। हाँ, मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो पॉजिटिव लोग हैं, वो ज़रूर हमारी मुश्किलात को भी समझने की कोशिश करें कि जहाँ पे हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की मुश्किलात हैं, जहाँ पे हम कर सकेंगे, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारी मुश्किलात को समझने की कोशिश करें। हमें बिल्कुल हम सबसे ये गुजारिश है कि आप लोगों के थ्रू हमें वो जो खामियाँ हैं वो पता चलेंगी, कि जो कमी बेशी है उसका पता चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि मरीज़ को उसकी दहलीज तक, उनके घरों तक हम जो है ना वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ मुहैया कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, ये था डॉक्टर अब्दुल मनान लाठी साहब, जो DHO उस्तामुंद हैं, जिनसे एक नशिस्त की है। देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि मुफादामा के तहत अपनी कमेंट्स और राय दीजिए, शेयर कीजिए। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वासावडिया मुस्तान।